Okay, ji. Assalamu alaikum. So I'm going to start off with complex numbers part 3. It says if complex numbers are multiplied, the modulus are also multiplied, the arguments are added. So if multiply हो रहे तो modulus multiply हो रहे, arguments add हो रहे हैं. complex number divide हो रहे तो उनके modulus divide हो रहे and arguments are subtracted, right? So if there are two complex numbers z1 and z2, ये multiply हो रहे, their modulus will also be multiplied, their arguments will be added. If ये divide हो रहे हैं, I'm sorry, this is divide. अगर ये divide हो रहे हैं तो इनके modulus जो है वो डिवाइड होंगे और इनके आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, राइट. से एक पार्शियल क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 प्लस आई कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट बाय यू स्टार और यू स्टेरिक, जो भी कह लो उसको, एक्सप्रेस यू अपॉन यू स्टार इन द फॉर्म एक्स प्लस आई वाई. पहला पार्ट करते हैं फिर दूसरा पार्ट करते हैं, राइट. सो यू इज 2 प्लस आई. सो आंसर पार्ट ए, इफ यू इज 2 प्लस आई then you need to understand u steric जो होगा, जो उसको कॉन्जुगेट होगा वो 2 माइनस आई होगा. It says u over u star, that's going to be 2 plus I over 2 minus I. इसको सॉल्व करने का तरीका है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, दैट्स 2 प्लस आई ओवर 2 प्लस आई. हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वो कॉन्जुगेट अलग था बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 माइनस आई था इसलिए 2 प्लस आई से मल्टीप्लाई किया. That's going to be 2 plus I into 2 plus I whole square, and this would be in the denominators would be the third identity 2 square minus I square. That's going to be in application of the first identity, that's going to be 4 plus 2 into 2 into I plus I square over 4 minus I square. So that's going to be 4 plus 4I plus I square is minus 1, and 4 minus I square is minus 1. So you have 4 plus 4I minus 1 over 4 plus 1 is just 5. 4 minus 1 is 3. This 4I over 5, you can't leave it like this, so you'll do 3 over 5 plus 4 over 5I. That's how you expressed u upon u star in the form x plus 1y. Now answer B. Start off with part B. It says by considering the argument, prove that tan inverse of 4 over 3 is equal to 2 tan inverse of 1 over 2. So in order to do this, you'll have to follow this. It's arguments निकालने पड़ेंगे. u over u star का argument अलग निकालना पड़ेगा, u का argument अलग और u steric का argument अलग. So arguments निकालते हैं जरा. Arguments is a two-step process बेटा, एक स्टेप पे नहीं करना है. से अभी हम argument निकालते हैं u over u star का. Now step 1 to find out alpha. Step 2 क्या होता था अगर आपको याद हो तो, identify the quadrant and find out the argument, right? ठीक है, तो मेरे पास u over u star आ गया 3 over 5 plus 4 over 5 आए, 3 over 5 plus 4 over 5 आए. इसमें a तुम्हारे पास 3 over 5 है और b तुम्हारे पास 4 over 5 है, राइट. पहले अल्फा निकाल लेते हैं. tan inverse of b over a, that's 4 over 5 divided by 3 over 5. yes or no? इसको कैलकुलेटर पे करते हैं. give me a minute. tan inverse of 4 over 5 just give me a minute beta. 4 over 5 and the 3 over 5, that's going to be 0.9297. अच्छा sorry, this has to be converted in degrees first, sorry. That's 53.13 degrees. ठीक है जी, डिग्रीज में 53.13 डिग्रीज आ गया, राइट. एंड देन उसके बाद हमने ये चीज़ कर ली. उसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ यू. अब यू जो है तुम्हारे पास 2 प्लस आई था, आई गेस यू इज 2 प्लस आई. सो 2 प्लस आई के लिए स्टेप 1 इज फाइंड आउट अल्फा. अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ b ओवर a विच इज़ 1 over 2. tan इनवर्स ऑफ 1 over 2 करते हैं. tan inverse of 1 over 2, that's going to be 26.56. फिर
स्टेप 2 कर लेते हैं, पहले सबके स्टेप 1 कर लेते हैं, पहले यू स्टेरिक कर लेते हैं, h2 माइनस आई, so स्टेप 1 हो गया tan inverse of b over a which is minus 1 over 2. Just give me a minute, मैं calculator पे करके, it's going to be minus 26.56. Sorry, so you ignore the signs, so that's 1 over 2, that's again 26 over 26.56, right? Next is step 2, identify coordinate, argand diagram बनाते हैं, 305 और 205, 305 is 0.6, 205 is 0.8, it's in the first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होगा वो अल्फा के बराबर होगा, विच इज 53.13. स्टेप 2 फॉर यू, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, दैट्स 2 and 1, 2 here 1 here, दैट्स अगेन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो आर्ग्यूमेंट जो होगा would be equal to alpha would be equal to 26.56. and then इसका स्टेप 2 कर लेते हैं. need to understand के quadrant आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, that's 2 and minus 1, so 2 on the x-axis and minus 1, that's in the fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बेटा आर्ग्यूमेंट जो होगा वो माइनस अल्फा होगा, that would be minus 26.56, right? once you've done this, अब हम ये प्रूफ करेंगे अपनी जो हाईलाइटेड इक्वेशन है, that's argument of u over u equals to argument of u minus argument of. अच्छा, इसका तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, अल्फा भी निकाल लिया, राइट? अब आपने ये सॉल्व करना हो तो ये सब काम करना है, ठीक है? मैंने सॉल्व करने के लिए थोड़ा रिविजन करने के लिए करा दिया, ठीक है? तो ये अल्फा निकाल लिए और आर्ग्यूमेंट्स निकाल लिया, राइट? आपने सिर्फ ये करना है कि इनकी टैंस की वैल्यू लेनी है. देखो इसकी u ओवर u स्टेरिक की अल्फा की वैल्यू आ गई, फिर इसकी tan इनवर्स 1 over 2, tan इनवर्स 1 over 2, इसको हाईलाइटेड इक्वेशन में फिट करना, ठीक है जी? दैट्स गोइंग टू बी, मैं करता हूँ, tan इनवर्स of 4 over 5, 3 over 5 should be equal to argument of u, which is tan inverse of 1 over 2 minus tan inverse of 1 over 2, ठीक है जी? अच्छा, ये माइनस अल्फा आया था तो ये माइनस tan इनवर्स हो गया. सो 4 over 5 और 3 over 5 का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, that's 4 divided by 5 divided by 3 divided by 5, that's going to be 4 over 3. so ये आ जाएगा tan इनवर्स of 4 over 3 equals to tan inverse of 1 over 2 plus minus minus plus tan inverse of 1 over 2. tan inverse of 1 over 2 और tan inverse of 1 over 2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2 tan inverse of 1 over 2. ये आपने शो कर दिया. This is what you had to show or you have to prove, right? Let's move on to the next part. It says forms of a complex number. There are 3 forms of complex number: rectangular form, polar form and exponential form. ये forms आपको याद होनी चाहिए. rectangular form is जो हम करते आ रहे हैं a plus b है, इसका यूजेज होता है आर्गन डायग्राम्स बनाने के लिए. polar forms का फॉर्म होता है z equals to r cos theta plus I sin theta, and theta is the argument where r is the modulus. It is used to convert from exponential form to rectangular form. अभी कराऊंगा questions पे, ठीक है? exponential form is z equals to r e I theta. Theta is the argument and r is the modulus. इसका usage है to take high powers of a complex number. You will understand this with an example. So I have an example that says, ये forms याद रखो, ठीक है? I have an example that says z is a complex number where z is root 3 plus 3i. Find modulus and argument of z. Express z in the form r e I theta and hence show that z6 is real. Okay, तो हम पहले r निकालते हैं. r is the modulus, that's square root of x square plus y square, which is root 3 का whole square plus 3 का whole square, that makes it root 12. Okay, सबसे पहले argument is the 2-step process. पहला step क्या होगा आपका बेटा?
आपने देखा अल्फ़ा निकाला, अल्फ़ा पाई ओवर 3 आया। देखो जब भी ये याद रखोगे ना, जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट द थीटा मस्ट ऑलवेज बी इन रेडियंस। तो जब भी ये फॉर्म करना हो तो कैलकुलेटर को रेडियंस मोड में करके उसके बाद सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, अल्फ़ा इज पाई ओवर 3। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई कि कौन सा रीजन है। हम रीजन देख लेते हैं, सॉरी क्वाड्रेंट देख लेते हैं। दिस इज 0, रूट 3 एंड 3। रूट 3 is somewhere here, 3 is here, that's going to be in the first quadrant। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होता है बेटा, वही अल्फा जो होता है वही आर्ग्यूमेंट हो जाता है, राइट। सो थीटा इज आल्सो पाई ओवर 3, ये आर्ग्यूमेंट इज आल्सो पाई ओवर 3। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट भी निकालिए, मॉडुलस भी निकालिए, एक्सप्रेस जी इन द फॉर्म आर आई। ठीक है जी, ये करते हैं। अब आपके पास आर आ चुका था रूट 12, आपके पास पहले पार्ट में आया रूट 12 ई आई इंटू जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट था वो पाई ओवर 3 था। अब जी पावर 6 निकालना था, तो दोनों टर्म्स को, एक इसको और एक इसको, इसमें पावर 6 लगा दो, तो रूट 12 की पावर 6 करोगे तो 1728 आएगा। लेट मी डू इट अगेन, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। रूट 12 to the power 6 is 1728, perfect, into e into I into pi over 3 into 6, right। 6 to 3 सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 3 1 टाइम एंड 3 2 टाइम, तो 2 आई पाई आ जाएगा, राइट। 2 आई पाई को बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पाई आई, मतलब तुम्हारा आर्ग्यूमेंट जो होगा वो 2 पाई बन जाएगा, राइट। उसके बाद यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म, लेट्स सी पार्ट बी दोबारा पढ़ते हैं। इट सेज हेंस शो दैट z6 इज रियल, यू विल हैव टू शो कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास आया ना, ये वाली चीज़, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, इसको अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यू विल ऑलवेज यूज पोलर फॉर्म टू कन्वर्ट an exponential form into rectangular form। So r cos theta plus I sin theta हो गया, where theta is the argument, r is the modulus। अभी जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आया था वो 1728 e 2i पाई आया था, तो उससे अब r जो है वो 1728 है जो यहाँ आ गया, और थीटा जो है, जो आर्ग्यूमेंट है वो 2 पाई है, वो 2 पाई यहाँ आ गया, ये 2 पाई यहाँ आ गया। अब कैलकुलेटर पे इनपुट करोगे तो cos 2 पाई इज़ 1 and sin 2 pi is 0, so I into 0 is 0, 1728 into 1 which is a real number। आपने शो कर दिया कि ये real number है। I want all of you to repeat this question using this form, okay। Thank you so much।